Hello all my dear students, a precious good morning to all of you. Welcome once again to your official YouTube channel, that is Biology at Your Fingers, on the behalf of Subrat Singh Children Academy, Jaunpur. And all my dear students, as you know, up till now in chapter number 5, Principle of Inheritance and Variation, we have discussed about the mutation part number 1. And in mutation part number 1, it was introductory part in which we have discussed about the various categories of the mutation on the basis of different criteria, and in which we have discussed about the types of mutation on the basis of cell in which it occurs, types of mutation on the basis of its occurring, जिसमें हमने spontaneous induced पढ़ा था. Earlier we have discussed about the somatic and germinal mutation, and in the last we have discussed about the mutation at genetic level, in which we have discussed about the chromosomal mutation, and second was point mutation, or we can say that gene mutation. So in chromosomal mutation there was two chances. The chance number 1, the chromosome structure got changed. ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या हो रहा था, चेंज हो जा रहा था, जिसको आप कह रहे थे मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन. दूसरी कैटेगरीज थी यहाँ से कौन सी, इन विच देयर वाज चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, and that was numeric mutation. So again morphological mutation was further categorized into deletion, addition, translocation as well as inversion. So all these will be discussed today in very detail, as well as we will also discuss about the numeric change, in which we will discuss about the euploidy as well as aneuploidy. Okay, so don't worry about anything, and there in gene or point mutation we have to discuss about the frame shift mutation. So all these points will be discussed today. So you have to watch the full video for a clear cut concept without any hesitation. So let's start mutation part number 2. Here we are discussing with chromosomal mutation, and in chromosomal mutation we are again discussing with category number 1, that is morphological mutation. And in morphological mutation, as you know that we have to discuss about the deletion, we have to discuss about the addition, okay, we have to discuss about the inversion, we also have to discuss about the translocation. It means that we will discuss here one by one. So we are considering with the point number 1, that is deletion. Point number 1 यहाँ से आपको दिख रहा है बेटा, deletion. So what is deletion, नाम से ही clear है. डिलीशन यानी कोई चीज डिलीट हो रही है. सो हियर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, a part of chromosome, or we can write an arm of chromosome got deleted. What is deletion? Here a part of chromosome or an arm of chromosome got deleted. क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट, या हम कह सकते हैं क्रोमोसोम की एक आर्म डिलीट हो जाती है. कैसे, यहाँ से मान के चलते हैं, दिस वाज अ क्रोमोसोम, ओके, एंड देयर वाज अ सीक्वेंस ऑफ जीन्स A, B, C, D, E, F, G, H. ये एक नॉर्मल सा क्रोमोसोम था. इसमें अब क्या हुआ बेटा, देयर इज डिलीशन. क्या हुआ, डिलीशन हुआ. और डिलीशन के बाद ये पोर्शन मान के चलते हैं इतना, जो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करने वाला था, ये क्या हो गया, माइनस हो गया. अब जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा होगा, लेट्स कंसीडर ABCD, यहाँ से केवल क्या बचा, H. So this one is known as deletion. Here a part or an arm of chromosome got डिलीटेड. तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिलीशन का.
लेट्स कंसीडर सेकेंड वन इज दैट इज एडिशन। नाम से ही क्लियर है, कुछ ऐड होगा यहाँ पे, इसी का वाइस वर्सा है बेटा। यहाँ पे जो हो रहा है उसी का उल्टा कहाँ होता है, एडिशन में। हियर अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, a part of chromosome is added and also known as इसको आप क्या कहते हो, इंसर्शन। इसी को क्या कहा जाता है, इंसर्शन कहा जाता है, जहाँ पे कोई एक पार्ट आके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ से फिर से एक बार देख लीजिए आप, लेट्स कंसीडर दिस क्रोमोसोम। हियर देयर वाज अ जीन, दोज आर A, B, C, D. Here there was E, F, G and H. क्या हुआ, कुछ ऐड हुआ यहाँ पे, मान के चलते हैं ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ऐड हो गया, और या कहीं से आके यहाँ पे जुड़ गया। तो ये तो था आपका नॉर्मल वाला क्रोमोसोम, और यहाँ पे जुड़ा A, B, C, D। ये क्या हो गया, E, F, G। नया वाला, पुराना वाला भी है E, F, G और H। तो इसको आप कह सकते हो एडिशन। इसी सेम कैटेगरी में देख लेते हैं बेटा एक और, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, ठीक है। डुप्लीकेशन में क्या होता है, अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम गॉट डुप्लीकेटेड, गॉट डुप्लीकेटेड। यानी यहाँ पे क्या होता है, एक पार्ट जो होता है क्रोमोसोम का वो क्या हो जाता है, 2 बार हो जाता है, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। कैसे, मान के चलते हैं ये एक क्रोमोसोम था, ओके। हियर देयर वाज अ जीन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मान के चलते हैं इसका क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। एंड आफ्टर डुप्लीकेशन व्हाट विल बी द न्यू कॉम्बिनेशन, दिस इज अ नॉर्मल वन। यहाँ से आप देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हुआ 5 6 7, एक बार फिर से डुप्लीकेशन हुआ है तो एक और बनेगा 5 6 7 एंड इन द लास्ट देयर विल बी 8। सो इट इज समहाउ रिसेम्बल्स विथ एडिशन और इंसर्शन, ठीक है। बट इसको हम एक अलग तरीके से भी कह सकते हैं, डुप्लीकेशन। अब हम देखेंगे बेटा एक और, इनवर्जन। Next, inversion. What is inversion? Here, a part of chromosome, a part of chromosome is cut and rotates 180 degree and join again in reversible manner, in reversible manner। यानी यहाँ पे क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट क्या होता है, कट होता है, कट होने के बाद वो 180 डिग्री घूम जाता है, और घूमने के बाद वो फिर से ज्वाइन कर लेता है रिवर्सिबल मैनर में। दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम breaks into 2 points and rotate 180 degree and join again in reversible manner। 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। एक तो क्रोमोसोम क्या था, कोई पोर्शन कट होके डिलीट होके वो क्या हो गया, दोबारा रोटेट करके 180 डिग्री आके जुड़ रहा है। दूसरी कैटेगरी हमने क्या बताई, यहाँ से आप देख सकते हैं क्रोमोसोम टूटने के बाद उसमें रोटेशन हुआ 180 और फिर से आके रिवर्सिबल मैनर में वो ज्वाइन कर गया। तो केवल वर्ड्स का डिफरेंस है बेटा, बाकी चीज़ें आपकी वही हैं। मान के चलते हैं दिस वाज अ क्रोमोसोम, यहाँ पे जीन्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8। मान के चलते हैं ये पोर्शन कट हो गया यहाँ से, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, इन्वर्जन, एंड आफ्टर इन्वर्जन एज यू नो इट विल अगेन ज्वाइन, ये फिर से क्या करेगा, ज्वाइन करेगा।
1 2 3 4। अब ये ज्वाइन करेगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल 7 6 5 एंड 8। सो दिस इज व्हाट इन्वर्जन। अगला है बेटा चौथा, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? हियर chromosomal piece got exchanged with homologous chromosome। homologous क्रोमोसोम, यानी यहां पे क्या हो जाता है बेटा कि जो क्रोमोसोम का पार्ट है या कोई एक पीस है वो एक्सचेंज हो जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर होमोलॉगस क्रोमोसोम में। मान के चलते हैं दिस वाज अ क्रोमोसोम, यहाँ पे जीन थे A B C D E F G H, देयर वाज अनदर वन। ओके, इसको थोड़ा अलग बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ट्रांसलोकेशन हो गया, ट्रांसलोकेशन, एंड ड्यू टू ट्रांसलोकेशन इनमें क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगे। लेट्स कंसीडर ये पुराना वाला था और ये आपका नया वाला है। एक्सचेंज के बाद यहाँ पे क्या सिचुएशन थी, A B C D, यहाँ पे मान के चलते हैं ये पोजीशन इतना एक्सचेंज हो गया, ठीक है। बचा कौन, यहाँ पे केवल H। हियर देयर वाज 1 2 3 4, अब यहाँ पे आ गया E F G 6 7 8। So this type of mutation is known as translocation. So this was all about the morphological mutation. Now we will discuss about the numerical mutation. तो बेटा दूसरी कैटेगरी है आपकी न्यूमेरिक म्यूटेशन। न्यूमेरिक mutation, we are discussing with chromosomal mutation, and here the category number 2 is here numeric mutation, and this numeric mutation is due to change in the number of chromosomes, change in the number of chromosomes। ठीक है बेटा, इसकी मैंने आपको दो कैटेगरीज बताई थी। द कैटेगरी नंबर 1 वाज euploidy, category number 1 was euploidy, and category number 2 was aneuploidy। euploidy and aneuploidy, there was two categories। what is euploidy? chromosome number changed by a set, changed by a set। यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम का नंबर जो है बेटा एक सेट के रूप में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी पूरा का पूरा सेट गायब हो सकता है या एक नया सेट पूरा आके जुड़ सकता है। यानी सेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात की जा रही है, ठीक है। वो कैसे हो सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। हमने बताया क्रोमोसोम नंबर चेंज बाय अ सेट, इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, organisms loses a set or acquires one or more set। ठीक है, ये यूप्लॉइडी जो होती है बेटा, इसकी बेसिक दो कैटेगरीज होती है। पहला होता है मोनोप्लॉइडी और दूसरा होता है पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, मोनोप्लॉइडी में क्या होता है बेटा, मोनो मीन्स द सिंगल, वन सेट होता है यहाँ पे। पॉलीप्लॉइडी में क्या होते हैं, मैनी सेट होते हैं, मैनी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सो यूप्लॉइडी को बेसिकली दो कैटेगरीज में, मोनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में बांटा गया है। ठीक है, या इसको हम यहाँ से इस तरीके से भी देख सकते हैं। और आपने देखा होगा, इफ देयर इज वन सेट उसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। इफ देयर आर टू सेट दैट इज नोन एज डिप्लॉइड।
If there are 3 set, that condition is known as triploid. ओके, कुछ और होते हैं जैसे हेक्साप्लॉयड, 6 सेट हेक्साप्लॉयड, ठीक है, 8 सेट, मैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स बता रहा हूं, ऑक्टाप्लॉयड, ठीक है, टेट्राप्लॉयड भी होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर 1 सेट है हैप्लॉयड, कहाँ देखें आप, गैमीट्स, गैमीट्स अक्सर ऐसे मिलेंगे आपको। सेकेंड, 2 सेट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स आपको जनरली क्या मिलते हैं, डिप्लॉयड मिलते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। ट्रिप्लॉयड बेटा आपको क्या मिलता है, एंडोस्पर्म। हेक्साप्लॉयड आपको कहाँ मिलेगा, वीट। और ऑक्टाप्लॉयड आप कहाँ देखेंगे, स्ट्रॉबेरी। ये तो कुछ आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है प्लॉयडी लेवल का, जो कि इससे कोई मतलब नहीं है। सो यूप्लॉयडी में बेटा क्रोमोसोम नंबर गॉट चेंज बाय अ सेट हियर, इसका मतलब क्या हो, ऑर्गेनिज्म लूजेज अ सेट और एक्वायर 1 और मोर सेट, यानी 1 सेट था, 1 सेट और आ गया तो हैप्लॉयड से डिप्लॉयड हो गया, 2 सेट थे और एक और आ गया तो ट्रिप्लॉयड हो गया। इफ देयर वाज 2 सेट एंड इट्स लूजेज अ सेट, then that is known as haploid condition. So you can easily understood. Now we will discuss about the aneuploidy. यहाँ से हम देखेंगे कैटेगरी नंबर 2, that is what, aneuploidy. यहाँ पे हमने देखा था पूरा एक सेट चेंज हो रहा था, ठीक है। अगर एक सेट में 2 क्रोमोसोम्स थे तो दोनों के दोनों, या 2 सेट में 4 थे तो पूरा का पूरा, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, हियर क्रोमोसोम नंबर got changed, chromosome number got changed by 1 और 2, यानी क्या हो सकता है, +-1 एंड +-2, यानी +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2 हो सकता है, -2 भी हो सकता है। कैसे, यहाँ से देखिए 2 कैटेगरीज जहाँ पे +-1 हो रहा है और +-2 हो रहा है। यहां से देखिए पहला मोनोसोमी, मोनो का मतलब बेटा केवल एक है। मान के चलते हैं ये वाली कंडीशन है, इफ देयर वाज अ सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहां से क्या हो गया, ये वाला एक डिलीट हो गया और क्या हो गया, ये अकेले बचा, यानी इसको हम क्या कहेंगे, 2n-1, तो इसको आप क्या कहोगे, मोनोसोमी। दूसरा क्या है बेटा, नलीसोमी, हियर कंप्लीट सेट गॉट डिलीटेड, यानी मोनोसोमी में केवल एक ये वाला क्रोमोसोम जा रहा था, यहाँ पे दोनों के दोनों चले जाएंगे, यानी नलीसोमी में क्या हुआ, दिस वाज द नॉर्मल सिचुएशन, और नलीसोमी के बाद क्या हुआ बेटा, ये 0 हो गए, यानी हियर 2n-2, यानी यहाँ पे बेटा हमने कौन सी कैटेगरी देखी है, -1 to -2। अब हम देखेंगे +1 to +2, यानी दूसरी कैटेगरी यहाँ से देखिए, इफ देयर इज व्हाट, +1, दैट कंडीशन इज नोन एज ट्राइसोमी, उसको क्या कहेंगे आप, ट्राइसोमी। अगर +1 है, अगर बेटा दूसरी कैटेगरी है +2, तो उसको आप क्या कहोगे, टेट्रासोमी, ठीक है। टेट्रासोमी और ट्राइसोमी, यानी ट्राइसोमी में क्या है, 2n+1, टेट्रासोमी में क्या है, 2n+2, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द chromosomal mutation in which we have discussed about the morphological and numeric. In the last we will discuss about the gene mutation. Okay बेटा, हमारे अगले कैटेगरी है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन, इसमें हम देखेंगे बेटा 2 कैटेगरीज, पहला पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। Point mutation and frame shift mutation. What is point mutation? This type of mutation takes place at specific
पॉइंट और प्लेस, यानी और प्लेस, यानी क्या हुआ कि पॉइंट म्यूटेशन एक स्पेशल प्लेस पे या एक स्पेशल पॉइंट पे होगा, यानी ये पिन पॉइंट होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जसप्रीत बुमराह है इंडिया के, वो पिन पॉइंट यार कर फेंकते हैं, यानी एकदम आपके टोज पे, पैरों पे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे म्यूटेशन भी एकदम एक्यूरेट पिन पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है। कहाँ पे आपने देखा था, एग्जाम्पल में आपने देखा था सिकल सेल एनीमिया। कहाँ देखा था बेटा, सिकल सेल एनीमिया में आपने इसका एग्जाम्पल देखा था। कैसे था एक बार आपको रिकॉल कराते हैं। मान के चलते हैं बेटा ये एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस था, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ये एक सीक्वेंस था किसका, अमाइनो एसिड का। इसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड थे, 1 2 3 4 5 6 7। सो हियर इन पॉइंट म्यूटेशन, mutation takes place at 6th position. Mutation takes place at 6th position, यानी यहाँ पे म्यूटेशन होगा, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड 6th पोजीशन एंड ग्लूटामिक एसिड गॉट रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, यानी यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड था उसको वायलिन ने रिप्लेस कर दिया म्यूटेशन की वजह से। यानी मान के चलते हैं GAG, ये ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये चेंज हो गया, तो अभी हो जाएगा GUG, यानी अब ये किसको रिप्लेस कोड करेगा, वायलिन को। यानी अगर ये एक ट्रिपलेट था, एक कोडॉन था जो ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था, अब ये किसको कोड करेगा, वायलिन को करेगा। यानी GAG got replaced by GUG. It means that if GAG got replaced by GUG, उसका मतलब क्या हुआ, ग्लूटामिक एसिड को वायलिन ने रिप्लेस कर दिया। अब बात करेंगे बेटा फ्रेम शिफ्ट की। ये होता है ड्यू टू एडिशन और डिलीशन ऑफ a particular nitrogenous waste, यानी यहाँ पे क्या हुआ बेटा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्यों होता है, ड्यू टू एडिशन और डिलीशन ऑफ अ पर्टिकुलर नाइट्रोजिनस बेस, यानी कोई एक पर्टिकुलर नाइट्रोजिनस बेस था वो या तो डिलीट हो गया या कोई दूसरा नाइट्रोजिनस बेस आके ऐड हो गया, ठीक है। ड्यू टू एडिशन और डिलीशन ऑफ अ पर्टिकुलर नाइट्रोजिनस बेस कहाँ होगा, इन द डीएनए। एक बेटा मैं सेंटेंस लिखता हूँ, वहाँ पे दोनों एडिशन और डिलीशन आपको बताऊंगा। यहाँ से वाई डिड द cat eat rat, ठीक है। Why did the cat eat rat? अब यहाँ पे हम बता रहे हैं या तो एडिशन होगा या तो डिलीशन होगा। सपोज डिलीशन हो गया और यहाँ से ये D क्या हो गया, डिलीट हो गया, यानी D इज डिलीटेड। ये बेटा मैंने एक्चुअल में नाइट्रोजनस बेस नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस लिखेंगे तो आपको समझाने में थोड़ा क्या होगा, डिफिकल्टी होगी। ये एक सेंटेंस लिखा गया है, इसमें आपको ये मान के चलना है कि जितने भी दिए गए हैं ये नाइट्रोजनस बेस हैं, यानी आपको ये मान के चलना है ये जितने भी दिए गए हैं सभी के सभी नाइट्रोजनस बेसेस हैं, और ये कहाँ 3-3 के फॉर्म में, यानी कोडॉन्स के रूप में, ट्रिपलेट्स के रूप में प्रेजेंट है। इस वजह से इसका एग्जाम्पल लिया गया है। अब यहाँ से अगर D डिलीट हो गया, अगर D डिलीट हो गया तो मान के चलते ये नॉर्मल फ्रेम था, अब नया फ्रेम क्या बनेगा, Y वैसे का वैसे रहेगा, D डिलीट हो गया तो ये हो गया IDT, ठीक है। उसके बाद HEC ATC, ओके, ATR
और ये फिर आगे चल के नया ढूंढ लेगा। यानी देखिए जो फ्रेम ये नॉर्मल था अब ये शिफ्ट हो गया, यानी राइट साइड में शिफ्ट हो गया। तो एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर यहाँ पे डिलीशन की जगह क्या हो जाए, एडिशन हो जाए, तो मान के चलते हैं हियर अ पर्टिकुलर एक्स जो कि एक नाइट्रोजनस बेस था इज एडिड। यानी अभी तक क्या था, डी एक नाइट्रोजनस बेस था जो डिलीट हो गया था, अब यहाँ पे एक्स आके ऐड हो रहा है। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, यानी यहाँ पे जो मान के चलते हैं वाई डिड, अब मान के चलते हैं यहाँ पे एक और ऐड हो गया जिसको आपने क्या कहा एक्स। अब ये एक्स आके यहाँ पे डिलीट हो गया, सॉरी एक्स आके यहाँ पे ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ से दिस वॉज ए नॉर्मल, अगेन दिस वॉज ए नॉर्मल। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, एक्स टी एच, यानी ये फ्रेम देखिए इधर हो गया, फिर ई टी ए, फिर अगेन टी ई ए, अगेन टी आर ए, अगेन ये अगला सर्च करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट हो जा रहा है, यानी अगर कुछ ऐड हो रहा है या डिलीट हो जा रहा है उसकी वजह से जो सीक्वेंस है डीएनए में, या हम कह सकते हैं जो डीएनए का सीक्वेंस है वो चेंज हो जा रहा है, तो उसी को हम कहते हैं बेटा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। Okay, so this was all about the mutation. I hope that after watching the video there will not be any doubts. Okay beta, in next video we will discuss about the genetic disorder. In genetic disorder we will discuss about the Mendelian and non-Mendelian disorders. यानी हम यहाँ से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी देखेंगे जिसमें क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। जेनेटिक डिसऑर्डर में आपको बताया जाएगा हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एज वेल एज फेनाइल कीटोनूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस 5 जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए गए, उतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। एज वेल एज वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द पेडिग्री एंड एनालिसिस ऑफ पेडिग्री। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है बोर्ड की क्लासेस से, बट कंपटीशन में कभी कभी पूछा जाता है। तो पेडिग्री और जेनेटिक डिसऑर्डर दो लास्ट के टॉपिक बचे हुए हैं, आने वाले 2 वीडियोज़ में उनको भी कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपका चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करूंगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।